morning students, welcome back to TSN class 6 7th science session. So we are at chapter 7 weather, climates and adaptation of animals to climate. So हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि बेसिकली क्लाइमेट, वेदर और अडेप्टेशंस कैसे मतलब एनिमल एक क्लाइमेट में सर्वाइव कर सकता है. ठीक है. So we'll start from the first line. Do you remember the things that you were asked to pack when you are heading for a hill station? When the sky is cloudy, your parents insist that you carry an umbrella. Have you heard elders in your family discussing the weather before planning a family function? You must have also heard the experts discussing the weather before the start of a game. Have you ever wondered why? The reason may have been profound effect on the game. It has a profound effect on our lives. Many of our daily activities are planned based on the weather prediction for that day. There are daily reports of the weather on the television and radio and in the newspaper. But do you know what this weather really is? अब हम बेसिकली ये चीज़ आप देखेंगे कि हम जब कभी भी प्लानिंग करते हैं अपने फैमिली वेकेशन या कुछ भी ऐसा प्लान करते हैं तो हम ये हमारी फैमिली मेम्बर्स देखते हैं कि क्या इस टाइम, या हम लोग जब छुट्टियां पड़ती है तभी हम डिसाइड कर लेते हैं, या साल स्टार्ट होता है जब ईयर स्टार्ट होता है तभी हम डिसाइड कर लेते हैं कि भाई कौन से मंथ में जाना है वेकेशंस पे. ये क्यों होता है बच्चों? इस वजह से क्योंकि क्लाइमेट फिक्स रहता है बेसिकली कि इस टाइम पे ये क्लाइमेट रहेगा. दिसंबर जैन में सर्दी रहेगी, जून जुलाई में गर्मी रहेगी. तो वो चीज़ एक अलग अलग डिफाइंड है कि अक्टूबर के आसपास रेनी सीजन रहेगा. तो ये सारी चीज़ें डिसाइडेड होती हैं, हम उस हिसाब से हमारा प्लान करते हैं. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द वेदर एंड क्लाइमेट. We will also see how different forms of life are adapted to the climate of their habitat. कैसे हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है वेदर और क्लाइमेट और क्या क्या डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं लाइफ के, या जो एनिमल्स है, प्लांट्स है, क्या क्या उनके अडेप्टेशंस होते हैं जिससे वो उस हैबिटेट पे सर्वाइव कर सकते हैं. वेदर 7.1 Weather. In figure 7.1, a sample of weather reports from a newspaper is given. We find that the daily weather report carries information about the temperature, humidity and rainfall during the past 24 hours. It also predicts the weather for the day. Humidity, as you might know, is a measure of the moisture in air. क्या होता है, आप फिगर देखेंगे 7.1, अ सैम्पल ऑफ वेदर रिपोर्ट्स फ्रॉम अ न्यूज़पेपर. अब आप इस चीज़ में ये देखेंगे इसमें अलग अलग चीज़ें दी हुई है, सनसेट, सनराइज, मॉइस्चर, ये सारी चीज़ें हम उसमें दी हुई होती है जिसमें 24 आवर्स का ड्यूरेशन में बताते हैं, 24 आवर्स का बताते हैं कि क्या ह्यूमिडिटी रहेगा, टेम्परेचर, रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन, ये सारी चीज़ें वेदर रिपोर्ट में दी गई होती है. Now Bujo is thinking, I wonder who prepares these reports. ये रिपोर्ट कौन प्रिपेयर करता है? The weather reports are prepared by the meteorological department of the government. This department collects data on temperature, wind, etc. and makes the weather prediction. अब ये हमें ये तो पता है कि वेदर रिपोर्ट क्या होती है, पर वेदर रिपोर्ट एक्चुअली में बनाता कौन है? तो वेदर रिपोर्ट जो बनाते हैं वो मेथोडोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो होता है गवर्नमेंट का, वो बनाता है. Activity 7.1. Cut out the weather reports of the last week from any newspaper. If you do not get a newspaper at home, borrow from your neighbor or friends and copy these reports in your notebook. You can also collect weather reports from a library. Paste all the cutouts on a white sheet or on a sheet paper. Now record the information from the weather reports collected by you in table 7.1. The first row is just a sample for all the columns according to the data in the chart that you have prepared. आप लोगों को ऐसा करना है कि आपको एक वेदर रिपोर्ट, आपको वो लेना है, न्यूज़पेपर लेना है, उसमें सारी कटिंग्स आपको निकाल के रखनी है और उसको अपनी कॉपी में चिपकाना है. ठीक है. अब ये एक्टिविटी do all the 7 days have the same maximum and minimum temperature, humidity and rainfall. अब हम ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि जो हमने 7 डेज़ का इसमें निकाला है, उसमें जो 7 डेज़ का है उसमें मैक्सिमम भी सब में सेम है क्या? मैक्सिमम, मिनिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल सब कुछ सेम है क्या? द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड मे बी द सेम फॉर सम ऑफ द डेज, हाउएवर ऑल द पैरामीटर्स आर नॉट द सेम और ऑन एनी 2 days. Over a week there may be considerable variations.
The day-to-day condition of the temperature at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. is called the weather at that temperature. अब ये जो डिटेल, ये जो बोल्ड लेटर्स में प्लीज़ आप उसे अंडरलाइन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये वेदर की डेफिनेशन है. ये वेदर एक्चुअली में होता क्या है. अब हमने जो 7 डेज़ की एक्टिविटी करी है उसमें 7 डेज़ में आप ये नोटिस करेंगे कि सब में मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर तो इट्स ओके सेम हो सकता है, लेकिन रेनफॉल, प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें सेम नहीं हो सकती. अब ये एक्चुअली में वेदर क्या होता है, डे टू डे कंडीशन, एटमॉस्फेयर या जो प्लेस आप रह रहे हो उसमें डे टू डे कंडीशन जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, ये सारी चीज़ें जो हैं ये वेदर क्या कैसा रहेगा या क्या कैसा होने वाला है कुछ दिन, 1-2 दिन आगे पीछे, तो इसको वेदर बोलते हैं बेसिकली. 1-2 दिन या कुछ स्पेसिफिक डेज़ का जब हम क्लाइमेट या आसपास सराउंडिंग्स हम जो देखते हैं वो वेदर कहलाता है. The temperature, humidity and other factors are the elements of weather. अब elements of weather क्या होते हैं? The temperature, humidity and other factors on which weather is dependent is called elements of weather. The weather of a place changes day after day and week after week. Weather conditions कैसे change होती रहती हैं? डे टू डे चेंज होती है. जैसे आज है, आज बारिश हुई, मे बी कल बारिश ना हो, मे बी 2-3 दिन बारिश हो, उसके बाद 1 वीक बारिश ना हो. तो ये सारी कंडीशंस, ये सारे एलिमेंट, ये सारे चेंज होता रहता है वेदर. अब आप ये चीज़ देखेंगे कि कुछ वीक्स में भी चेंज होता है ये, कि 1 वीक पूरा बारिश का रहा, नेक्स्ट वीक बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई, तो वेदर चेंज होता रहता है. दिस इज़ वाई वी ऑफन से टुडेज वेदर इज़ टू ह्यूमिड और द वेदर वॉज वार्म लास्ट वीक. इसीलिए हम बोलते हैं आजकल बहुत गर्मी हो रही है, वेदर बहुत गर्म है, या वेदर में बहुत बारिश होने वाली है, ह्यूमिडिटी है. The weather is such a complex phenomenon that it can vary over very short period of time. It can happen sometime that it is a sunny in the morning but suddenly cloudy area from nowhere and it starts raining heavily, or a heavy rain may vanish in a matter of minutes and give away the bright sunlight. कभी कभी ये होता है कि एकदम से, जैसे अभी बारिश हो रही है बेसिकली, तो आज जैसे सुबह अगर धूप पड़ रही है और मे बी शाम में एकदम से बारिश हो जाए, या कुछ मिनट्स में 15 to 20 मिनट्स बारिश हो, उसके बाद सनलाइट आ जाए, तो वेदर चेंज होता रहता है इवन मिनट्स में, नॉट इवन डे, इवन मिनट्स. You must have had several such experiences. Try to recall some of the experiences and share it with your friends. Since weather is such a complex phenomenon, it is not easy to predict. Weather को आप predict नहीं कर सकते क्योंकि थोड़े टाइम में चेंज होता रहता है. लेकिन आप क्लाइमेट प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस महीने में गर्मियाँ रहती हैं या इस महीने में सर्दियाँ रहती हैं, तो आप वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं. Look at the graph given below, which shows the maximum temperature recording during 3rd of August 2006 to 9th October 2006 at शिलोंग मेघालय. अब ये जो शिलोंग मेघालय में आपको एक वेदर का वेरिएशन दे रखा है कि डे बाय डे चेंज हो रहा है. एक दिन टेम्परेचर क्या है, नेक्स्ट डे टेम्परेचर क्या है, तो चेंज होता रह रहा है. आप ये देख पा रहे हैं, टेबल भी पास में बनी हुई है, अब इसमें भी चेक कर सकते हैं. As it is clear from any weather report, the maximum and minimum temperature are recorded every day. Do you know how these temperatures are recorded? In chapter 4, you have learned that there are special thermometers for this purpose, called maximum and minimum thermometers. Can you guess when during the day we have the maximum temperature and when is the minimum? क्या होता है कि मिनिमम और मैक्सिमम चेंज होता रहता है और हर दिन का अलग अलग रिकॉर्ड होता है. तो एक स्पेशल, इस चीज़ को हम मेजर खुद तो कर नहीं सकते, तो उसमें एक स्पेशल थर्मामीटर होता है जिसमें मैक्सिमम, इट इज़ कॉल्ड मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर्स. इन दोनों को इनका नाम दिया हुआ है मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर्स, जिसमें मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर वो बताता है. The maximum temperature of the day occurs during the afternoon, while the minimum temperature occurs generally in the early morning. Can you now understand why is the summer we feel so miserable at the afternoon and comparatively comfortable early in the morning? क्या होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर कब रहता है, आफ्टरनून में, और मिनिमम टेम्परेचर कब रहता है, सुबह सुबह जब उठते हैं हम लोग अर्ली मॉर्निंग 5-6 बजे के टाइमिंग में काफ़ी ठंड लग रही होती है, और दिन के टाइम हमें इतनी गर्मी लग रही होती है. जब आप लोग लंच कर रहे होते हैं तो उस टाइम आप आप देखते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है. तो ये टेम्परेचर डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा रहता है.
What about the times of sunrise and sunset? You know that in winters it becomes dark early and you do not get much time to play. Are these days shorter in winters than in summers? Try to find it out yourself by completing the project given in the end of the chapter. अब ये चीज़ आप देखेंगे कि कभी कभी आपको लगता है कि सनसेट और सनराइज़ का टाइम क्या रहता है. सर्दियों में क्या होता है, बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है. जैसे अभी का टाइमिंग चल रहा है, हमारा अक्टूबर का मंथ चल रहा है, उसमें क्या होता है, बहुत जल्दी ठंड पड़ने लग जाती है, बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है. वो इसी वजह से होता है, बहुत जल्दी अंधेरा इसी वजह से होता है क्योंकि बहुत जल्दी सनसेट हो जाता है और इसी वजह से क्या होता है, ठंड जल्दी पड़ने लगती है. तो ये चीज़ आप एक क्लास में एक्टिविटी दी हुई है, वो आप करेंगे. एंड we'll study the next topic, which is climate, in next class. Till then, complete your work and we'll meet in next class. Thank you. Have a nice day.